So let's come to the last section of figure problems, and this is a concluding video of nested for figure problems. Okay, and here I'll once again revise all the questions which we had done in a video where you can get all the things together at one place. Okay, so let's see what all figures which we are going to discuss today. So maybe the first figure which we wanted was, we wanted this. Suppose this is the figure. So how will you do it? For int, remember the diagonal, 1, 2, less than equal to 3, I plus plus. Any doubt in this? ये तो I की वैल्यू हो गई, and J will be, 4 लाइनें लिखनी है, बस हमें I लिखना आना चाहिए, J लिखना आना चाहिए. J equals to 1 till J less than equal to I. J less than equal to I, J plus plus. And inside system dot out, excuse me, so let's say system dot out dot print, and in double quotes star, and then system dot out dot print ln. Okay, and then you write the class name and all, and that will be over. So simple thing, we should know how to, what is the value of I, what is the value of J. Okay, let's see the second problem. Suppose the question was like this: 1, 1, 2, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 4. Okay, I'm not writing the whole program, I'm just telling you the main thing. So if we have to do this, again you see the diagonal. Is that clear? So what will be the value of I? 1, 2, बस केवल सेट करना है, और प्रोग्राम सब वैसे का वैसे ही है. 1 to 4 डायगोनल दिखाई दे रहा है, और ये क्या होगा? J की वैल्यू है. J will remain beginning from 1 till 2, beginning from 1 till 3, beginning from 1 till 4. Any doubt in this? इसमें भी कोई डाउट नहीं है किसी को? Is that clear? Okay, so these two questions are easy, but here in place of star what we will do is, देखो हमने क्या किया और कुछ चेंज नहीं किया है, बस यहाँ 1 to 4 कर दिया क्योंकि I की वैल्यू सेट हो गई. J1 to I चल रहा है, J1 to I चल रहा है, बस प्रिंट क्या करेंगे हम? J. I hope it is clear. Okay, suppose the third problem, if we see here, let me do the third one. Suppose the third is that I want like this: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, and let's say 5, 5, 5, 5, 5. Suppose I want to do this. तो इसमें भी दो लूप करने हैं. Let's see what will be the value of I. I की वैल्यू तो डायगोनल दिखाई दे रही है, जो डायगोनल दिखाई दे रहा है वो I की वैल्यू. So what will be I? Less than equal to 4 की जगह क्या हो जाएगा ये? Quickly, it will be in place of less than 4, it will become less than equal to 5, क्योंकि ये 5 तक चल रहा है. ठीक है, 1 to 5. अब J क्या होगा? 1 to I. J क्या होगा? उतना ही. पहली लाइन पे एक बार चलना है, दूसरी लाइन पे 2 बार चलना है. तो अभी ये J की वैल्यू नहीं है, इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना. J 2 बार चलना चाहिए, फिर 3 बार. तो हम क्या लिखेंगे? सेम 1 to 1, then 1 to 2, then 1 to 3, because I will keep on changing. So same it will remain. But here in this question what we will do is, in place of printing J, अब हमें क्या प्रिंट करना है बेटा? We will print I. अगर J प्रिंट करता तो क्या होता? 1, 1, 2, 1, 2, 3. लेकिन अगर मुझे चेंजिंग नहीं चाहिए, सेम चाहिए, तो देन व्हाट वी विल प्रिंट? प्लीज सी हियर. तो क्या हमने सेट किया? ये और ये, बाकी सब वही है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लेट्स सी नाउ few more questions with the help of BlueJ. Okay, so let me open BlueJ. And let's make a new class, say final figure.
Okay, I am opening this. I'll keep on writing the question here only so that it will be easier for you to understand. ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कि हम कैसे फटाफट प्रोग्राम करें. मान लो क्वेश्चन है, आई हैव टू डिस्प्ले दिस 5 4 3 2 1 5 4 3 2 5 4 3 5 4 एंड 5. इज दैट क्लियर? तो इसको बनाने के लिए ये आई की वैल्यू दिख रही है डायगोनल. अब देख लो 1 2 5, ठीक है ना, ये 1 2 5 और जे की वैल्यू भी अब साफ दिख रही है, ये जे है क्योंकि चेंज हो रही है ना. तो 5 2 1, ठीक है. तो दोनों लूप समझ में आ गए. तो लेट्स सी हाउ वी डू इट. क्लास फाइनल फिगर void main. ओके, बस 4 लाइनें इनमें लिखनी है. फॉर int i equals to what will be the value of i? Diagonal. Remember, फट से लिखो, देखो और लिख दो. i less than equal to 5 i plus plus. कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए. 1 to 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है. अब j we have to see horizontal. j we have to see horizontal. So j is starting from where? 5. See the first line only. j is starting from 5 till I. Okay, so for int j equals to, what is the value of j? Once again I will try to tell you over here. These are the value of j. डायगोनल तो हो गया i की वैल्यू, ये तो i की थी. j की वैल्यू क्या है? ये, ठीक है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 5, so same thing we will write till where? Till 1, but we never use 1. what do we write is I, क्योंकि अगली बार अगली लाइन पे 2 चाहिए, तो वो हम बार बार चेंज नहीं करेंगे. स्टार्टिंग देखो 5, जे उल्टा चल रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, दिमाग बस यहां लगाना है, आई एंड जे माइनस माइनस बिकॉज इट इज रिवर्सिंग नाउ. ठीक है, जे की वैल्यू उल्टी हो रही है तो माइनस हो रही है. 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो ग्रेटर देन इक्वल. तीनों लाइनों पे चेंज है. हियर ऑल्सो इज अ चेंज एंड हियर ऑल्सो इज अ चेंज. बस बाकी आपको कुछ नहीं करना. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इनसाइड, क्योंकि इट इज चेंजिंग, सो जे क्लोज एंड आउटसाइड system dot out dot println. Close this for, close the void main and close the class. I hope it is clear. I की वैल्यू सेट करी 1 to 5, j की वैल्यू सेट करी 5 to 1. हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल. ओके, कंपाइल इट. यहां पे I नहीं लिखा है. कंपाइल इट, नो एरर्स. लेट्स सी, वी रन दिस. ओके, void main. Can you see here? See the last. I am clearing this to make it more clear for you. I have removed all the answers which were taken up before. Can you see here? Is it matching? Yes. I की वैल्यू diagonal और j की वैल्यू 5 to 1, 5 to 2, 5 to 3. So we will not write 5 to 1. We will write 5 to I, 5 to I, 5 to I. I hope it is clear. Okay. Let's again open this program. Let's see another question. Suppose I have to do this. Write a program to display the following figure. What? 4 4 4 4 3 3 3 2 2 and 1. तो तुरंत ये ध्यान देना चाहिए कि 4 4 मतलब हमें प्रिंट क्या करना है? हमें प्रिंट जे नहीं करना, अब हमें प्रिंट आई करना है. बस एक तो ये चीज क्लियर हो गई. ठीक है, बस सेट करना है. अब आई की वैल्यू क्या है? 4 to 1, तो यहां हो जाएगा 4 to 1. और जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू, अब ये जे की वैल्यू नहीं है क्योंकि ये आई की वैल्यू है. तो ठीक है ना, ये आई है बिकॉज आई एम प्रिंटिंग आई. तो जे कितनी बार चलेगा? सेम 1 to I. इट विल चेंज इनटू 1 to I. सो लेट्स सी. आई क्लोज दिस. Let me try to make a change here first. So what will be I?
I am rubbing this so that okay. So what will be the value of I? Can you see the diagonal? So I is from 4 till 1. So ulta chalega till I greater than equal to 1 semicolon, and now I not plus plus minus minus. और j क्या हो जाएगा? j इस केस में वही होगा, 4 बार चलेगा तो j is 1 to j less than equal to I, j plus plus, nothing else. And this will remain in place of j. Now I will print I. Now I will print I because 1 2 3 4 नहीं प्रिंट करना, 4 4 4 4 3 3 3, तो it means it should immediately strike me कि ये j नहीं प्रिंट करना है, इसमें हमें I प्रिंट करना है, वरना अधिकतर प्रोग्राम में j प्रिंट करना होता है. ठीक है, तो क्या चेंज किया है? बस हमने सिर्फ सेटिंग करनी है, इसको कहते हैं हमें बस अपना फाइन ट्यून करना है, प्रोग्राम है लूप में ही. ओके, डायगोनल से आपको I पता चल जाएगा, इधर से आपको j पता चल जाएगा, और क्या प्रिंट करना है वो इससे पता चल जाएगा. इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट इज I, and if it is changing it is j. Let's compile it. Quickly see this program. New, okay, void main. ये कुछ गड़बड़ हो गया. 5 4 3 2 1. Let me clear this first. Let's see the program which we did. 4 to 1 1 to I, print I, system.out.println. I is 4 to 1, of course, 4 greater than equal to 0. 1 to 4, then 1 to 3, then 1 to 2. We are printing I, absolutely correct. Let's compile it. Let me see अगर कोई एक line शायद नीचे तो नहीं चली. Okay. We have compiled it. We close. New, okay. Four, three, two, one. Now what it is happening over here, it is printing only the value of I, मतलब ये j वाले लूप में नहीं जा रहा. इसका मतलब हमने कहीं पे, एक मिनट बेटा, आई विल क्लियर दिस. And let me close this. Final figure, void main. For int I equals to 4, I greater than equal to 1, I minus minus, j equals to, यहाँ गड़बड़ लिखा हुआ है, I नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? 1, 1 to I. Is that clear? Now we compile it. Okay, so we have to test it. जरा भी गड़बड़ हो गया, देखो क्या हो रहा था, ये I2, यहाँ क्या लिखा हुआ था? I. तो I की वैल्यू क्या है? 4. तो ये 4 to 4 क्या प्रिंट कर रहा था? 4 to 4, मतलब एक बार. फिर अगली बार 3 to 3, एक ही बार. ठीक है, तो इसलिए इसको हमने चेंज किया. 1 to I, क्लोज इट. नाउ लेट्स सी. ओके, run it. Can you see here? 4 4 4 4. So this is the value of I, and this is the value of 1 to 4 1 to 4 1 to I, which is 1 to I. Okay, let's clear this, and let's see if we want to discuss something else, maybe a last question. Let's do this. Or three, मान लो ऐसा है. ठीक है, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आप I की वैल्यू देखिए. I की वैल्यू क्या है? 1 to 5. तो पहले तो I की वैल्यू सेट करते हैं हम. ठीक है, पहले अपन I की वैल्यू सेट करते हैं. लेट्स गो टू I. 1 to 5, 1 till I less than equal to 5,
i प्लस प्लस, इंक्रीजिंग है तो माइनस माइनस नहीं आएगा। अब ये क्या रहेगा, ये वही रहेगा, इट विल रिमेन दिस ओनली 1 to i। रिमेंबर 1 1 1 1 मतलब हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, ये भी एकदम सही है, वी आर प्रिंटिंग i। तो जब भी i प्रिंट कर रहे हैं तो ये फिर j को कुछ ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, इट विल रिमेन 1 to i ओनली बिकॉज। लेकिन अब यहाँ पे ये देखो बेटा, ये जो है ये 5 बार चलना चाहिए, ये पहले कितनी बार चलना चाहिए, हॉरिजॉन्टली कितनी बार चलना चाहिए, 5 बार। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, 5 to greater than equal to i and j माइनस माइनस। जिसने ये समझ लिया समझ लो पूरा उसको कंसेप्ट क्लियर आ गया। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले 1 to i लिखें, अगर हम 1 to i लिखेंगे बेटा तो क्या होगा, देखो ये, लेट्स सी इफ वी राइट 1 to i। ठीक है, अगर मैं इसको करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, अगर इस क्वेश्चन को मैंने देखो, मैंने फिगर हमारा उल्टा हो गया, क्या प्रिंट किया, ये i शुरू हुआ कहां से, 1 से, तो ये पहले 1 to 1 क्या प्रिंट किया इसने, 1। फिर अगली बार i हो गया 2, अगली बार i हो गया 2, तो ये कितना चलेगा 1 to 2, और प्रिंट क्या करेगा 2 2, फिर प्रिंट करेगा 3 3 3, फिर प्रिंट करेगा 4 4 4 4, फिर प्रिंट करेगा 5 5 5 5 5। लेकिन कैन यू सी दिस फिगर इज डिफरेंट एंड दिस फिगर इज डिफरेंट। ओके, सो इट विल नॉट वर्क। व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, इसको ध्यान दो, हियर इट शुड नॉट वर्क पहली लाइन पे, इट शुड नॉट वर्क 1 टाइम। इन द फर्स्ट लाइन आई वांट इट शुड प्रिंट 5 टाइम्स। इज दैट क्लियर? तो हॉरिजॉन्टली कितनी बार चलना चाहिए, 5 बार, लेकिन अभी ये कितनी बार चल रहा है, 1 to 1, एक बार, लेकिन चलना चाहिए ये 5 बार। सो हाउ टू डू इट 5 टाइम्स, लेट्स सी, आई विल जस्ट रब दिस। Okay, so to print it 5 times, what we will do is, here we will just put this 5 and this greater than equal to I and j minus minus। तो देखो अब ये क्या चलेगा, j माइनस माइनस। अब अगर आप इस लाइन को देखो, इसको थोड़ा फिर से समझते हैं, लेट्स क्लियर दिस फिगर एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो पहले बेटा i क्या हुआ, 1, तो ये कितनी बार चलेगा, 5 to 1, कितनी बार चलेगा ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार, 5, लेकिन प्रिंट क्या करेगा, 1। फिर अगली बार जब ये शुरू होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये चलेगा 5 to 2, i कितना हो गया 2, तो कितनी बार चलेगा, 5 4 3 2, मतलब और 4 बार चलेगा, लेकिन प्रिंट क्या करेगा, i 2 2 2। Is that clear? So this is how it will work. I know you may be having a doubt in this, but it will be better if you ask these doubts in your live session. Okay, so wait for it and then we will see what you will ask and then I will explain you so that I can connect with you, because this is the thing which you will be able to understand. लेकिन बाकी तो सारे क्लियर है, ठीक है, i लिखना आ गया, j लिखना आ गया, प्रिंट में i लिखना है या j लिखना है, और प्रिंट ln। ओके, let's compile this and quickly run this last program and see the result. Okay, void main, can you see here, i की वैल्यू तो क्लियर है, i की वैल्यू तो डायगोनल है 1 to 5, लेकिन j हॉरिजॉन्टली कितनी बार चल रहा है, 5 बार। तो क्योंकि मैं इस चीज को एक बार से बस जरा सा और समझा दूं, क्योंकि मुझे j कितनी बार चलाना है, 5 बार, ये कितनी बार चलना है, 5 बार। ठीक है, तो 5 बार बेटा, रिमेंबर i मैंने क्या लिखा है, 1 to 5, ठीक है, तो j मैं 1 to i करूंगा तो ये एक ही बार चलेगा क्योंकि i 1 है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं बजाय 1 to i करने के मैं इसको कर दूंगा 5 to i। j is beginning from 5 to i, 1 to i करेंगे तो 1,
5 to I. So this is the only thing which I have made a change in this question. We can again show you the program. This is the program. Can you see here? This is the change which I made. 5 to I. तो ये 5 बार चलेगा. अगली बार 5 to I will be 2. तो 5 to 2 4 बार. फिर 5 to 3 क्योंकि I बढ़ रहा है. तो 5 to 3 मतलब 5 4 3 3 बार. ओके, तो तब जाके हमें पहली लाइन पे 1 1 1 1 5 बार, फिर 2 2 2 2 4 बार, फिर 3 3 3 3 बार, फिर 4 4 2 बार. ये उल्टा हो रहा है. यू कैन सी अगेन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. ओके, तो 5 से 1, फिर 5 से 2, फिर 5 से 3, फिर 5 से 4 और फिर 5 से 5. ओके, so with this we end today's video as well as the chapter which we wanted to. In the next class we will be having a live session where we will meet you, we'll connect with you, and then whatever doubts you have related to any figure problems you can ask. Till then, once again, keep on learning. Wish you all the best. Bye. Bye for today.